very nice good morning to all of you. My name is Deepsika Bhati from standard 6th class. Present here as an anchor of today morning assembly. At first girls Nandini Kumari from standard 3rd class and second girl Anushka Sinha from standard 6th class and third girl Tulsi Kumari from standard 2 class. Please come on the stage. For the in your sweetest and melodious voice. Ready for the Hanuman Chalisa. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार
After prayer, now it is time for Gayatri Mantra. So I want to call Neha Kumari from a standard 1 class. Ready for the Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Swaha. Om Bhurbhuvah Swaha. Tatsaviturnvarenyam. Tatsaviturnvarenyam. Bhargo devasya dhimnahi. Bhargo devasya dhimnahi. Dhiyo yona prachodayat. Dhiyo yona prachodayat. ॐ भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं। तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। After Gayatri Mantra, now it is time for placed. So I want to call Ansu Raj from a standard 4th class. Please come on the stage. माइक से रखो Ready for the pledge. India is my country. India is my country. All Indians are All Indians are my brother and sister. my brother and sister. I love my country I love my country and I am proud and I am proud of its rich of its rich and very heritage. and very heritage. I shall always I shall always strive to be strive to be worthy of it. worthy of it. I shall give my parents I shall be my parents, teachers teachers, and all respect and all respect and treat everyone and treat everyone with courtesy with courtesy to my country to my country and my people. and my people. I take my devotion I pledge my devotion in their well-being in their well-being and prosperity. and prosperity. Alone lies my happiness. Along with my happiness. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. After this, now it is time for thoughts. So I want to call Mohit Kumar from a standard 4th class. Please come on the stage. सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं। थैंक यू। After thought, now it is time for marvelous speeches. So I want to call Lovely Miss. Please come on the stage. Good morning, all of you. Good morning. जैसा मोहित कुमार ने कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिसकी क्या कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। तो क्या समझे इससे? हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम से कभी भी पीछे नहीं हटनी चाहिए।
क्योंकि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है, ना कि जो बैठे रहेंगे और उन्हें सफलता मिल जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे ही सही मेहनत करनी चाहिए सभी लोगों को, ना कि छोड़ देना चाहिए। थैंक यू। Now it is time for marvelous subject, so I want to call principal sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। पहले लवली मिस के लिए जो डालता है अभी जैसे मोहित कुमार ने बोला और अभी आपको तुरंत रिजल्ट मिला है उसका। मैंने कई बार बोला है कि जो संघर्ष करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, वो किसी भी व्यक्ति को पीछे छोड़ सकता है। अब बताओ, लवली मिस को स्कूल आए हुए कितना दिन हुआ है? बहुत कम समय हुआ है, लेकिन वो मार्वेलस स्पीच में धीरे धीरे हिम्मत करके, बल्कि 2 ही वर्ड आता है, 2 ही सेंटेंस आता है, उसको बोलने का प्रयास करती है। तो ऐसा ही प्रत्येक शिक्षक को और प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि जो बच्चे एंकरिंग करा रहे हैं, जो बच्चे हनुमान चालीसा गा रहे हैं, जो बच्चे गायत्री मंत्र गा रहे हैं, जो बच्चे थॉट बोल रहे हैं, जो बच्चे प्लेस बोल रहे हैं, वही बच्चे बार बार आते हैं। क्यों? और भी लोग हैं, और भी स्टूडेंट हैं, वो क्यों नहीं शामिल होना चाहते? क्योंकि उनके पीछे एक डर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? डर। और उसके पास हिम्मत भी नहीं है, और दूसरा बात जिज्ञासा भी नहीं। पहला क्या होता है? हिम्मत। मैंने सबसे पहले बताया हूं कि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले ये चेष्टा करना चाहिए कि मैं साहस को जुटाऊं। साहस मतलब समझते हैं ना? हिम्मत को क्या करना है? हिम्मत को जुटाना चाहिए। अब बताओ, हमारी मुख से कुछ वाणी ऐसी है जो किसी को ठेस भी पहुंच सकता है और किसी को अच्छा भी लग सकता है। कोई ऐसी वाणी नहीं है जो प्रत्येक बच्चों को अच्छा लग सकता है। कुछ बच्चों को ठेस पहुंच सकता है, कुछ बच्चों को, जो हमारे पॉजिटिव सोच रहे हैं उन्हें अच्छा लगेगा, जो नेगेटिव सोचते हैं उनको खराब लगता है। तो आप यहीं से सीख ले सकते हैं कि आपकी मिस के आए हुए बहुत कम समय हुए, और मैं स्टूडेंट को देखता हूं कि हमारे स्कूल में वो सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक ना ही एंकरिंग करने के लिए आया है, ना ही कोई प्रे करने के लिए आया है, ना ही कोई थॉट बोलने के लिए आता है, और ना ही वो कभी साहस जुटाते हैं, साहस हिम्मत करते हैं, कभी भी नहीं। अब जो व्यक्ति, जो बच्चा कभी साहस ही नहीं करेगा, कभी हिम्मत करेगा ही नहीं, कैसे वो इंक्रीज हो सकता है? कैसे आगे बढ़ सकता है? कोई दूसरा उपलब्धि है ही नहीं। जब भी आपको ग्रोथ करना है, वृद्धि करना है, तो एक ही चीज आप दिमाग में जो है ठान लीजिए कि हमें हिम्मत करना है। और जो भी कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो कम से कम आप माइक पे नहीं सही, आप घर में ही प्रयास कीजिए, स्कूल में ही जब भी टाइम मिलता है उस समय प्रयास कीजिए। अगर जो आप एक मोटो ले लीजिए कि हमें प्रेयर गाना है, हमें, देखिए मैं फर्स्ट क्लास में ही बताता हूँ, सब हर हमेशा बताता हूँ कि आपको विद्या थोड़ा कम आएगा तो चलेगा, वो मेकअप हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, लेकिन जो अध्यात्म की बातें होती है, जो सद्गुण होता है, उसको हर हमेशा कैच करना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, जब हम ठेलते हैं तो आगे बढ़ते हैं, जब छोड़ देते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। कम से कम जहां तक अगर मैंने आपको पहुंचा दिया तो वहां तक तो आप अपना लेवल इक्वल रखेंगे। मैं प्रत्येक बच्चों को प्रत्येक दिन सिखाता हूं कि आप अपने माता पिता, गुरुजनों को डेली आप प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, अच्छे अच्छे जो भी
बच्चन है उनसे अच्छे अच्छे बातें करो। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, इस कान से सुनते हैं और इस कान से क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। कोई भी बच्चा जो डेली रूटीन है उसको फॉलो नहीं करता है, और जो बच्चा फॉलो कर रहा है उससे बेहतर बच्चा इस धरती पे है ही नहीं। मेहनत सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं होता है। मैंने क्या बताया कि जो आपका डेली का रूटीन है उसमें भी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हम उठ जाते हैं, मेरा काम अपने खुद से हो जाता है। कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका काम अपने से स्वयं हो जाता है? होता है? नहीं होता है ना। तो हर एक क्षेत्र में क्या होता है, मेहनत। आप जैसे जैसे मेहनत करेंगे, जिस क्षेत्र में मेहनत करेंगे, जिस सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे, वो सब्जेक्ट आपका बेहतर बनता है। आप अपनी वाणी में, आपका जो बोल है उसमें भी सुधार करेंगे, अच्छे अच्छे वचन बोलेंगे, अच्छी अच्छी वाणी बोलेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत लेवल मिलता है, बहुत ऊपर तक जाने का मौका मिलता है। अब बताओ, कोई भी वाणी अगर कड़वा बोलेगा, अगर मैं कड़वा बोलूंगा आप सुन पाएंगे? ज्यादा देर तक सुन पाएंगे? नहीं। लेकिन मैं अच्छी वाणी बोलूंगा तो अत्यधिक समय तक आप उसको क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन मेरा वाणी जो है वो वाणी में मिठास नहीं, कड़वा रहेगा, भस्म की तरह रहेगा, तो उसे कौन संग्रह करेगा? करेगा। इसलिए मैं प्रत्येक बच्चों को, जो कमजोर बच्चे हैं उनको मैं विशेष कहना चाह रहा हूं कि आप अपने दिमाग में एक ही चीज ठान लीजिए कि हमें संघर्ष करना है तो करना है, हमें मेहनत करना है तो करना है। और जिस दिन ये दिमाग में ठान लिए कि मैं मेहनत करूंगा, तो मैं ये स्कूल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूं कि आप किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या है, अभी जब मैं बताता हूं तो एक आध दिन आप फॉलो करते हैं और दूसरा दिन बोलते हैं चलो यार मेरे से नहीं होगा। आप खुद से हार मान लेते हैं, आप खुद से क्या कर लेते हैं, हार मान लेते हैं। इस कारण है कि आपका जो कार्य है वो सफल नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब हुआ कि जो भी कमजोर व्यक्ति, जो स्टूडेंट अगर ठीक ठाक हैं, पढ़ने में ठीक हैं, उनका लिखावट ठीक है, तो उन्हें सिर्फ उसको फॉलो करते रहना चाहिए बस, और उसको और प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो कमजोर तबके के बच्चे हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं, तो उन्हें बार बार उस चीज को अभ्यास करना चाहिए। मेहनत अपना जो होता है ना, अपने तरफ से जारी रखना चाहिए। आप जितना जारी रखोगे उतना बेहतर स्टूडेंट बन जाओगे। नहीं जारी रखोगे तो फिर वही, हम एक बार कालिदास का भी कहानी सुनाए थे ना, कि कालिदास जब कोई व्यक्ति थे जो पेड़ काटने के लिए बोले, तो जो टहनी था, जिस टहनी को काट रहे थे उसी साइड वो क्या किए थे, बैठ गए थे। लेकिन जिस स्त्री से उनका विवाह हुआ था वो बहुत पढ़ी लिखी हुई महिला थी, है ना जी, बहुत अध्यात्म जानती थी, ये बेचारा कुछ भी नहीं जानते थे। और वो प्रण कर लिए थे कि मैं विवाह तभी करूंगा तब तक इस स्त्री से मैं अत्यधिक जान जाऊंगा। और उन्होंने बहुत कठोर संघर्ष किया, और आज के डेट में उनको काल मालविकाम, अग्निमित्रम, बहुत सारे उन्होंने किताब का रचना कर दिए, बहुत सारे पुस्तकों को क्या किए, लिख दिए। एक व्यक्ति जिसको पेड़ काटने की नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हम पेड़ को काटेंगे तो पेड़ मेरे पे गिर जाएगा कि पेड़ पे हम गिर जाएंगे, उसको ये नहीं पता है। और उन्होंने माइंड में ऐसा कठोर तपस्या लिया, ऐसा कदम उठाया कि बोला कि नहीं, जो अगला व्यक्ति है उससे मैं निकल जाऊंगा तभी अगला कार्य को करूंगा। ठीक उसी तरीके से जो कमजोर बच्चे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आप भी एक दिमाग में एकदम रखिए कि हमको करना है, मेहनत तो करना है। आप देखिएगा एक दिन न एक दिन आप ऊंचाई पे चले जाइएगा। ठीक है, हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। थैंक यू। Now it is time for the
Children, please go to your classes after canteen. Thank you.